The topic is the cost. Topic is cost. Okay. Cost means the money expenditure which is incurred on buying factor inputs and non-factor inputs. Cost are the expenditures incurred by any firm on the production of factor inputs and non-factor on buying of factor inputs and non-factor inputs. Raw material, capital, machines, laborers, lands, whatever things which we need in the process of production. To buy them, what amount of money I have to spend, that is called the cost. Okay, cost is of basically two types. Cost is of basically two types. I'm not going in very detail in this topic. I'm touching only that topics which will be helpful in finding out the value of fixed cost or the variable cost or the marginal cost or the average cost. So I am touching only those topics which will be useful in finding out the values in numerical based question. तो कॉस्ट में दो कॉस्ट मेन होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. Variable costs are those costs which gets changed with every level of output. Sometimes it increases, sometimes it decreases. Sometimes it gets increased, sometimes it gets increased with the level of output. Like if demand for commodity is more, then demand for its raw material used in the process of producing that particular commodity, demand for raw material will rise, demand for electricity, consumption of electricity will also rise, demand for labor will also rise. So this type of factor inputs like labor, raw material, electricity, fuel, water, these are called variable cost. Variable cost, which sometimes increases or decreases with every level of output, because it depends upon the demand for the commodity. ठीक है, डिमांड कमोडिटी का बढ़ेगा तो उस कमोडिटी को बनाने के जितने भी चीज इस्तेमाल होते हैं उन सबका डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हीं चीजों से उस सामान का प्रोडक्शन होना है. अगर उसका डिमांड घट जाएगा तो हम रॉ मटेरियल खरीद के करेंगे क्या? मशीन क्यों चलाएंगे तो उसमें डीजल क्यों डालेंगे? तो डीजल का डिमांड भी कम होगा, फ्यूल का डिमांड भी कम होगा. लेबरर से काम क्यों करवाएंगे, उनको बैठा करके वेजेस या पैसे हम क्यों देंगे? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज करेंगे जब मशीन चलाना ही नहीं है, जब लाइट फैन सब ऑफ रहेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस का काम चल ही नहीं रहा है, तो हम क्यों इसको डिमांड में लाएंगे? तो इफ डिमांड इंक्रीजेस, प्रोडक्शन इज टू बी इंक्रीज्ड, देन रॉ मटेरियल, लेबरर, fuel, water, these things will be increased. ठीक है, लेकिन जब इसका प्रोडक्शन घटाना होगा तो इन सारी चीजों का भी प्रोडक्शन हम घटा देंगे, वो वेरिएबल कॉस्ट होता है. ठीक है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, विच इज वेरी स्टबर्न, विच इज वेरी rigid, it never gets changed with every level of output. Why? Because anyhow owner of firm has to spend this type of money. जैसे कि किस तरह के पैसे उसे देने पड़ेंगे, किस तरह के पैसे, काम हो या ना हो, काम बंद हो या बढ़े, उस फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा. ठीक है, काम हो या ना हो, अगर इंश्योरेंस कराया है मैंने फैक्ट्री का तो प्रीमियम मुझे पे करना पड़ेगा. काम हो या ना हो, काम ठप हो या काम टेम्पोररी टाइम, मतलब काम जो है वो बढ़ रहा हो, चल रहा हो, तो भी परमानेंट वर्कर को वेजेस हम देंगे. तो रेंट, वेजेस, प्रीमियम और इंश्योरेंस, ठीक है, दिस टाइप ऑफ कॉस्ट्स हैव टू बी बोर्न बाय द फर्म्स. तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होगा जो कि बहुत हीट होता है. ठीक है, तुम लोग खुद ही सोचो,
अगर किराए के मकान में रहते हो, तुम्हारे घर का किराया अगर 8,000 है तो 8,000 तुम हर महीने पे करते होगे, वो फिक्स कॉस्ट हो गया, वो रेंट हो गया, ठीक है। लेकिन बिजली बिल जो है वो कभी ऊंचा होता है, कभी कम हो जाता है। एसी चलेगा तो ज्यादा बिल आएगा, एसी नहीं चलेगा तो कम बिल आएगा, तो वो फ्लक्चुएटिंग होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एन एग्जांपल ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट एंड रेंट of your house is an example of the fixed cost. The fixed cost always remains same. On the other hand, variable cost gets changed depends upon its use. ठीक है, ये तो हो गया। इसका मतलब है कि हम अगर इसको ऐसे लिखें कि PC is equal to TVC total variable cost plus TFC, TVC plus TFC total variable cost plus total fixed cost is equal to total cost. इसमें 20,000 खर्च हुआ, इसमें केवल 10,000 खर्च हुआ। तो इसका मतलब है कि ऑल इन ऑल आई हैव टू गिव रुपीज 30,000। ठीक है, हमारा बेसिक हो गया। अब इसके बाद सिंपल मैथ्स इज इन अ न्यूमेरिकल TVC is to be found, then you will subtract the value of TFC from TC. If you have to count the value of TFC, you will subtract the value of TVC from TC. ठीक है, these are the basic things. Next, average cost. इसका मतलब है कि कितना हर यूनिट को प्रोड्यूस करने के एवरेज कितना तुम्हारा खर्चा आता है। हर यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हारा हर यूनिट पर कितना खर्चा बैठता है एज अ होल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। तो जैसे TC इज इक्वल टू TVC प्लस TFC है, ऐसे ही AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC है, AFC प्लस ABC है ना। ठीक कैसे भी जब मुझे ABC निकालना होगा तो एवरेज कॉस्ट में घटा देंगे AFC। जब मुझे AFC निकालना होगा तो AC में घटा देंगे ABC। तो ये हमारा बेसिक मैथ्स बेसिक फॉर्मूला होगा। ठीक है, और इसके बाद बचा एक चीज, वो है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि तुम जब एक और ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, क्वांटिटी था 100 बना लिया, अब तुम्हें एक और बनाना है, तुमने 100 बना लिया, तुम्हारा खर्चा बैठता 1,000। और तुम जब 101वां बनाओगे, तो जब एक एडिशनल बनाओगे, तो उस एक एडिशनल अमाउंट को प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें और कितना पैसा देना पड़ा, तुम्हें और कितना कॉस्ट बियर करना पड़ा। तो अगर मान लो कि एक एक्स्ट्रा तुम बनाते हो तो तुम्हें मान लो कि लगता है 50 रुपए, ज्यादा लगता है, खर्चा लगता है, तो 1,050 हो गया, टोटल हो गया 1,050, तो मार्जिनल कॉस्ट हो गया 50। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग एल्स, इट इज ओनली द एक्स्ट्रा कॉस्ट borne by the firm if firm wants to produce an extra quantity of the commodity, that is called marginal cost. तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? दो TVC के बीच का डिफरेंस, TVC के बीच का डिफरेंस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n आइटम माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट ऑफ आइटम। TVC of n item minus TVC of n minus 1 unit of item, मतलब नया माइनस पुराना, जो नया TVC का वैल्यू होगा उसके ऊपर वाले TVC में घटा देंगे, यानी नया माइनस पुराना। ठीक है, नया TVC माइनस उसके ऊपर वाला जो TVC होगा उसका डिफरेंस जो होगा वो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट आएगा, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा, लिख लो इसको, लिख लो। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल तुम लोग को सॉल्व करके हम दिखाते हैं। लेट मी सी द टाइम, क्योंकि कितना टाइम बच रहा है वो देखना है ना। ओके चलो ठीक है, सी आई एम ड्राइंग इट आउट, राइट द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सॉल्विंग वन क्वेश्चन ऑन माय ओन। ठीक है, मैं पहले सॉल्व करके दिखा रही हूँ, उसके बाद दूसरा करो, उसको सॉल्व करो। जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिया आउटपुट, ठीक है, ये है 0 से लेकर 5, 1 2
जीरो आउटपुट पर टीडीसी हमेशा जीरो रहता है। ध्यान से पहले सुनो। बट आई एम वेरी unhappy to see the number of the students attending my class. बताओ, उन बच्चों को कन्वे करना कि मैम कह रही थी कि हम बहुत दुखी हैं, हालांकि उनको दुख, मेरे दुख से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो डेली वो लोग जानते ही होंगे, वैसे बात थोड़ी है कि उनको पता नहीं है कि क्लास चल रहा है। अच्छा ठीक है, चलो अपना टाइम आएगा तो देखा जाएगा। चलो ये हो गया जीरो। जीरो आउटपुट पर पीवीसी हमेशा जीरो रहता है। कुछ नहीं बना तो रॉ मटेरियल मैंने नहीं मंगवाया, वर्कर मैंने नहीं रखा, इलेक्ट्रिसिटी मैंने यूज नहीं किया, जीरो पर जीरो मैंने बताया था। नेक्स्ट है 6, 10, 15, 6, 10, 15, then 24 and 35, 24 and 35, ठीक है। इतना दिया हुआ है, इतना वैल्यू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? Yes, TFC is also given. TFC is also given, that is 12, 12, 12, 12, 12, 12. ये सेम रहेगा। TFC कांस्टेंट रहता है। ज्यादा बनाओ तो भी 12,000, कम बनाओ तो भी 12,000, नहीं बनाओ उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? किराया तो देना पड़ेगा घर का। गर्मी की छुट्टी में शिमला घूमने चले जाओ, ठीक है, ठंड में साउथ घूमने चले जाओ तो भी मकान मालिक तुमसे घर का किराया लेगा। वही टीएफसी का हाल है। फिर 12 होता है, ठीक है। अब यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टीसी। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टीसी बाय समिंग अप these two columns, these two columns। इन दोनों कॉलम को प्लस कर दो, कॉलम को नहीं, इसकी वैल्यूज को प्लस कर दो तो टीसी आ जाएगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, marginal cost is nothing else but it is only the differences between two TVC, and mind it that at zero level of output marginal cost is nothing. At zero level of output marginal cost is nothing, it is dash, it is dash. So write in your copy that when level of output is zero, then marginal cost is not to be found, ठीक है। वो तुम्हारे ब्रेन का मिसयूज होगा। दूसरा, at one level of output, whatever value is given for TVC, that will be continued in column of marginal cost। फिर से बोल रहे हैं, जो फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पर जो TVC होता है, वही सेम वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट होता है, ठीक है कनिष्क, समझ में आया कि नहीं? जीरो पर डैश, जीरो पर जीरो, जीरो पर डैश, जीरो पर जीरो, याद रखो इतना। लेकिन जो फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट आएगा तो फर्स्ट आउटपुट पर जितना भी टीडीसी होता है सेम वैल्यू रिपीट किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट में, ठीक है। अब इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस टीडीसी का डिफरेंस, 10 में गया 6 तो 4, 15 में गया 10 तो 5, फिर 24 में गया 15, 5 और 9, ये हो गया 9, ठीक है। और फिर 35 माइनस 4, 6 5 11, कितना हो गया? 6 5 11, ये हो गया 11। 6 4 चेक करें, 6 4 5 9 11, 6 4 5 9 11, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू कैसे आया? पीवीसी के डिफरेंसेस को लिख के आया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर पीवीसी एग्जाम में नहीं दिया हुआ हो, टीसी दिया हुआ हो, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो फिर टीसी का गैप ही मार्जिनल कॉस्ट होता है, टीसी का गैप ही मार्जिनल कॉस्ट होता है। देखो कैसे होता है, वो एक उसका टेक्निक है, वो बताते हैं। पहले इन दोनों को तुम्हें प्लस कर लेना, ये 12 हो गया, ठीक है, और 6 18, 10 12 22, और ये 27, और ये कितना 4 5 6 2 3 35 45 47, ठीक है 47। अब इसका जो गैप होगा ना वो सेम आएगा, जो मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू है, तो टीसी का गैप से हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाला, फिर टीसी के गैप से भी तुम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना हो गया? 6। बोर्ड दिख रहा है सबको? सबको बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, फिर 22 में गया 18 तो 4, 27 में गया 22 तो 5, 36 में गया
चार, अच्छा 11 आ रहा है। यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक बार पहले हम देख ले किसी का अगर सही है तो मेरा भी बात सही है। 12, 18, 22, 27, 36 और 47। ठीक है, सेम आएगा, ये पूरा सेम आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस हो जाएगा हमारा 11। ये हमारा आंसर आएगा टीसी मार्जिनल कॉस्ट का। एक और चेक कर लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट 6, 4, 5, 9, 11, राइट। और टीसी का वैल्यू है, टीसी का 12, 18, 22, 27, 36, 47। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, अब एक चीज, जितना भी टाइम अभी बचा, ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। आई एम गिविंग वन क्वेश्चन टू यू और जल्दी से तुम लोग उसको सॉल्व करके बताओ। और गलत होगा कोई बात नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं। They will do practice every day and success is nothing more than doing practice every day. Okay, and practice makes a man perfect. And you have to be perfect because you are preparing for the final exam in class 12. ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन लिखो। तो ये भी सोचना कि टाइम हो रहा तो क्लास ऑफ हो जाएगा, कोई बात नहीं, बात इसको सॉल्व करते रहना। चलो लिखो क्वेश्चन। तो question is question in first column write down output. In the first column write down output 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. In next column write down the values of total cost. Total cost पहला लिखो 50, 50, फिर लिखो 80, 80, फिर 108, 108, फिर 108, फिर लिखो 136, 136, फिर लिखो 166, 166। ठीक है, फाइंड आउट टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। फाइंड आउट टीवीसी एंड मार्जिनल कॉस्ट। टीवीसी एंड एमसी, ये दो चीज निकालो। हम वेट कर रहे हैं। And don't sit without doing anything. Anything means everybody has to solve the question. We have to find out TVC. What is the value of TVC at 0 level of output? At 0 level of output, what will be the value of TVC? मैंने क्या सिखाया है? 0 आउटपुट पर मैम 0। हाँ 0 होगा। TVC शुरू में 0 होता है। सुन लो कनिष्क, भाव्या, शिवम, 50 होगा। सॉरी 0 होगा, 0। लेकिन TFC क्या होगा? TFC क्या होगा? शांभवी मैम 50, 50, 50। हाँ 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, पूरा 50 लिखो। 0 पर जितना TC होता है ना, वो सारा TFC में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं हम लोग। TBC 0 शुरू में तो 0 हो गया, फिर फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर TBC कितना आया? TBC के लिए क्या करोगे दीपिका? TBC के लिए TC प्लस TC में घटा दो TFC। TBC के लिए TC में घटाओ TFC। TC दिया हुआ है TFC 50, 50, 50, तो TC माइनस TFC तरह करते जाओ तो कितना आया? पहला तो 0 हो गया, फिर कितना आया? Find the answer before the class gets over. Come on, tell me the answer. Any one of you? Nobody is replying. It means everybody is sitting idle. Kanishk, what's the answer? मैम हो गया मैम। हाँ, बोलो तो TBC कितना है?
मैम TVC 0, 30, 58, 86 and 116. यस। और मार्जिनल कॉस्ट जीरो का तो डैश होगा, पहला तो डैश होगा, उसके बाद अरे टीवीसी का गैप लिख के जाओ, अंतर 30, 30, फिर 28, फिर 28, फिर 30, मैम लास्ट में 30। हाँ डैश 30, 28, 28, 30, ठीक है, बिल्कुल सही। कुछ समझ में आया कि नहीं? यस मैम। में आ गया ना? अच्छा भाई इतने कम बच्चे, फिर क्लास करना ही बंद कर देंगे। 46 में से इतने बच्चे, तुमको तो शर्म आ रही है कि हमको क्या बताए, मुंह छुपाना पड़ेगा हमको, बताओ तो फिर हम क्यों हैं यहाँ पर, हम क्यों, और जब बताओ बच्चे आएंगे ही नहीं तो हम करेंगे क्या, जीरो को पढ़ाएंगे। तो तुम लोग को नहीं कह रहे, तुम लोग चलो थैंक यू, बच्चे कहते हैं मैम हम लोग को क्यों डांट रहे हैं, हम बात सही है, हम लोग मेरी तरफ से लोग मुझ लोग को डांट देंगे कि मैं बहुत गुस्से में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन लोग को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ओके बाय, अपना टाइम आएगा, उन लोग को कह देना, और कल मंडे को फिर प्रैक्टिस कराएंगे इसी का, ठीक है, इसी का प्रैक्टिस कराएंगे, और चलो ठीक है, बाय।